नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली की कट्टर ईमानदार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। जी हां, शराब घोटाले के मामले को लेकर अर्जी लगाई गई थी, जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसे आज खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा है कि 8 महीनों में अपना ट्रायल पूरा करें मनीष सिसोदिया और उसके बाद ही लगा सकते हैं वो फिर एक बार जमानत की याचिका। और यानी कि अब 8 महीनों बाद होगा मनीष सिसोदिया का फैसला, क्या उन्हें मिलेगी बेल या फिर काटने पड़ेंगे और भी दिन जेल में। इसी के साथ जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर अब हमलावर दिखाई दे रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लगातार आम आदमी पार्टी वो निर्दोष बता रही है, कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है और हमारे कट्टर ईमानदार नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम बातें मनीष सिसोदिया पर कही हैं और ईडी की तरफ से जो दलील दी गई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठा रही है। सत्यमेव जयते. After the trial court and the high court, now the Supreme Court has also denied bail to Kattar corrupt Manish Sisodia, and today all the defenses of the Aam Aadmi Party fall flat on their face, because the Supreme Court, while denying bail, has said that a 338 crore money trail has been established. That means money has reached the coffers of the Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party continuously was saying that where is the money trail? Where is the money trail? Even though the High Court, even though the low courts had established this money trail and had denied bail, whether it was to Manish Sisodia, whether it was to Vijay Nair, whether it was to Sanjay Singh, they kept lying to the people of this country and saying that these leaders are Kattar Imandar. Arvind Kejriwal continued to defend them. Today, no less than the same Supreme Court, which they were quoting just a few weeks back, has come out categorically with a verdict that money trail has been established, the Sharab Ghotala has taken place. Today, the question is that how long will Mr. Kejriwal continue to defend these people? Secondly, is it not true that the Aam Aadmi Party is Kattar corrupt? Thirdly, is it not true that Mr. Kejriwal owes a resignation immediately because he has been defending those who are the most corrupt by calling them Kattar Imandar? This is a party which started its origins from the India Against Corruption movement under Anna Hazare. Today they are with Lalu Prasad Yadav and Congress Party. And fourthly, is it not true that Mr. Arvind Kejriwal has his own role in this Sharab Ghotala? Was that the reason he was trying to defend all these Kattar corrupt leaders, including Manish Sisodia and Mr. Sanjay Singh? Today, Mr. Kejriwal must resign. And today, one thing is established, that the entire Aam Aadmi Party is involved in this Sharab Ghotala. They have not answered a single question about the Sharab Ghotala as to why the commissions were increased, why wholesale was given to private sector, so on and so forth. But they have only kept on defending the Sharab Ghotalebaz, and this is the reason why. Because this Sharab Ghotala goes to the doorstep of Mr. Kejriwal, and Mr. Kejriwal himself is the kingpin of this entire liquor. 338 करोड़ की मनी ट्रायल के जो आरोप लग रहे थे, आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्राइम फंसी उस पर मोहर लगाई है, जो स्पष्ट करता है यहाँ केवल धुआं नहीं है, आग है और आग का बंडर है। और आम आदमी के नाम पर, परिवर्तन के नाम पर आम आदमी पार्टी ने देश की जनता को ठगा है, ठगा है। ये ठग पार्टी है, नाम तो लेती है कि हम आम नागरिकों के लिए काम करेंगे, लेकिन शराब माफिया को चलाती है। शराब के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है। नगर के अंदर स्कूल कॉलेजेस के पास बड़ी बड़े शीशे वाले शोरूम शराब के खोले जा रहे हैं। कुछ चंद हाथों को फायदा पहुंचाकर दिल्ली और पंजाब की जनता को लूटा गया है। नशा मुक्ति के नाम पर ठगी, माफिया के नाम पर ठगी, खनन के नाम पर ठगी, बंगला नहीं लूंगा लेकिन शीश महल के नाम पर ठगी, कोठी, गाड़ी, सिक्योरिटी
नहीं लूंगा, लेकिन सब ली उसके नाम पर ठगी। मानसिक और वित्तीय ठगी मारकर जनता को लूटा भी गया है और झूठ की सियासत की गई। दिल्ली बीजेपी के ट्विटर पेज से जो है वो ट्वीट यानी कि एक्स पर लिखते हुए कहा गया है, शराब की दलाली में अब जेल में मनेगी दिवाली। ये मनीष सिसोदिया के लिए बात जो है वो दिल्ली बीजेपी की तरफ से लिखी गई है और इसी के साथ दिल्ली बीजेपी के पेज पर जो है वो पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से कर दिया है इनकार। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सांसद बीजेपी के सांसद परवेश सिंह साहिब वर्मा जो हैं उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर आज हमला बोला है और एक्स पर उन्होंने कई पोस्टें जो हैं वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर की हैं। परवेश सिंह साहिब वर्मा ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि शराब पॉलिसी में 338 करोड़ रुपए की हेरा फेरी साबित होती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए मनीष सिसोदिया की बेल को जो है यानी कि जो बेल याचिका लगाई गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज किया गया है। और इसी के साथ परवेश सिंह साहिब वर्मा ने जो है वो अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि जिस मनीष सिसोदिया जी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है, उस भ्रष्टाचारी इंसान की तुलना अरविंद केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह से करी थी और अब अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से करप्ट मनीष सिसोदिया की तुलना जो शहीद भगत सिंह से अरविंद केजरीवाल ने की थी। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस दिन मनीष सिसोदिया के घर पर पिछले साल एजेंसी ने छापेमारी की थी और जिस दिन गिरफ्तारी भी की गई थी यानी कि 2023-26 फरवरी के दिन कई घंटों की छापेमारी के बाद एजेंसी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम इनकी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो भगत सिंह की तरह देश को आगे दिल्ली को उज्जवल करने के लिए काम कर रहे थे। हमारे नेता जो हैं वो कट्टर ईमानदार हैं, पर राजनीति के चलते बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के लिए जेल में डाला है। और आज जिस तरीके से तुलना की गई थी शहीद यानी कि जो देशभक्त थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में एक बड़ा अहम रोल निभाया, शहीद भगत सिंह, और उनकी तुलना जो है वो करप्ट यानी कि शराब पॉलिसी में लिप्त पाए गए मनीष सिसोदिया से की जा रही थी, जिस पर अब बीजेपी का मानना है और बीजेपी लगातार मांग कर रही है। जो बात जो है कही भी गई है परवेश सिंह साहिब वर्मा की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को ये जिस तरीके से तुलना की गई थी इस पर माफी मांगनी चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी क्योंकि ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का एक कुनबा है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट करना मनीष सिसोदिया का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट करते हुए लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे कुछ पहलू हैं जो संदिग्ध हैं और 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण के संबंध में ये प्रथम दृष्टिया स्थापित है। जमानत खारिज जो है वो कर दी गई है। पापी आप और उसके कट्टर ईमानदार नेता निकले यानी कि
चुके जो कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल कहते थे वो किस तरीके से पापी निकल रहे हैं और सरगना अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए। यानी कि एक तरफ माफी तो वहीं दूसरी तरफ अब इस्तीफे की मांग जो है वो भी बीजेपी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कर रही है। और इसी बीच मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मनीष सिसोदिया जी की शराब घोटाले में जमानत को रद्द कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि करोड़ों रुपया दिल्ली के लोगों का शराब घोटाले के नाम पर प्राइवेट व्यापारियों को काम देकर लूटने का किया है। पॉलिसी को बदला गया है और पॉलिसी इस तरह से बनाई गई है जिससे उनके मित्रों को लाभ मिल सके। आज ये स्पष्ट हो गया, जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं, हमने पैसे नहीं खाए, आज स्पष्ट हो गया कि मनीष सिसोदिया ही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी सबसे बड़े माठग हैं, बेईमान हैं, लूटने का काम करते हैं। और जो करोड़ों रुपया लूटकर अपने घरों में भरा है उसके कारण आज मनीष सिसोदिया जेल में है। और अरविंद केजरीवाल जी को ना निचली अदालत पे विश्वास था, ना हाई कोर्ट पे था, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलेंगे। पर बड़ा जन जन तक है अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जेल से तब तक नहीं आएगा बाहर जब तक उसके द्वारा लूटे गए एक एक पैसे का हिसाब ना हो जाए और उसमें उसकी सजा ना हो जाए। देश को और दिल्ली के लोगों को पता चल गया देश का सबसे बड़ा बेईमान लुटेरा कौन है, अरविंद केजरीवाल और उसके साथी मनीष सिसोदिया जैसे लोग। उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली शराब नीति घोटाले में सिलसिले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है और ट्रायल कोर्ट ने 6 से 8 महीनों में सुनवाई पूरे करने के निर्देश दिए हैं कि ट्रायल जो है वो इन महीनों में खत्म होना चाहिए। कट्टर बेईमान केजरीवाल जी और उनके वजीर सिसोदिया जी ने अपनी पूंजीपति दोस्तों के साथ मिलकर जो करोड़ों का शराब घोटाला किया था उसका हिसाब सिर्फ देश की अदालत ही नहीं बल्कि जनता की अदालत में ही होगा। और इसी के साथ जाने माने एडवोकेट हैं प्रशांत उमराव जो कि सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं, उन्होंने भी 2 ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और कोर्ट में किस तरीके से आज दलीलें रही उनका जो है वो व्याख्यान किया है। प्रशांत उमराव ने लिखा है कि जस्टिस संजीव खन्ना और SBN भाटी की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने आदेश सुनाया है कि विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि संदिग्ध हैं। 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण के संबंध में स्थानांतरण स्थापित किया गया है और हमने जमानत खारिज कर दी है। ये बात जो है वो कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से की गई है। और इसी के साथ जो जनता है जो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो तंज कस रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी तक अपने किसी भी नेता के ऊपर जो है वो ये नहीं कह रही है कि इन्होंने घोटाला किया है, दिल्ली की जनता के पैसे का जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए लगा है, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इसी के साथ ईडी की तरफ से जो है वो भी आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ी दलील दी गई आज कोर्ट में और ईडी ने कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी को जो है वो आरोपी बनाया जाए। जी हां, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी उस समय पर भी ईडी ने इशारों में ये बात कही थी कि अब आम आदमी पार्टी को जो है वो आरोपी बनाया जाना चाहिए इस पूरे शराब घोटाले में। तो यानी कि आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी जो है वो बारी आ सकती है, उनसे भी शायद ईडी पूछताछ कर सकती है या फिर उन्हें भी कोर्ट ले जाया जा सकता है या फिर उनसे कोई सवाल जवाब जो है वो भी एजेंसी कर सकती है। अब देखना अहम रहेगा कि आज जो झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रिस्पॉन्स क्या आता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जो जनता है वो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है और कह रही है कि जिस शराब घोटाले में करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद किए गए, अपनी जेबों में भरे गए, उस चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कोई अधिकार नहीं है अरविंद केजरीवाल का सीएम की कुर्सी पर बने रहने का और दिल्ली की जनता को और ज्यादा ठगने का। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।